Good morning, students. How are you? I know you are all well. And in the previous lecture, we have studied about, we have studied about gene, we have studied about cistron. I have told you the difference between monocistronic and polycistronic segments of DNA. Then I have also told you the difference between exons and introns. And today we are going to discuss about types of RNA and the process of transcription. In this particular lecture, we will be talking about various kinds of RNA and their functions. Apart from that, we will be also discussing about the process of transcription, especially in case of prokaryotes. I hope you know the meaning of prokaryotes. They are called as bacteria. Okay, now let us talk about types of RNA and their functions first of all. Now, see here. In case of prokaryotes, there are three types of RNA. mRNA, also called as messenger RNA, rRNA, also called as ribosomal RNA, tRNA, also called as transfer RNA. अब यहाँ इसका फिगर भी देख सकते हैं. This is messenger RNA, this is ribosomal RNA and this is transfer RNA. देखिए मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर डिफरेंसेस भी हैं. ये राइबोसोमल RNA में ये छोटा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, और ये बड़ा वाला हिस्सा दिस इज अ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. All types of RNA are required in the process of protein formation. Now let us see one by one the functions of various kinds of RNA. Okay, beginning with mRNA, also called as messenger RNA. See, messenger RNA provides template for the formation of protein. rRNA, also called as ribosomal RNA, it plays a very important role in structural and catalytic role as such, plays a very important role. rRNA is also present in ribosomes. This is transfer RNA. The function is it brings about amino acids and reads the genetic code. Transfer RNA is responsible for bringing the amino acid so that a polypeptide or a protein can be formed. So these are various three types of RNA, okay, along with their functions. Now here you can see the diagram. This is called as mRNA. It serves as a template for the synthesis of protein, while transfer RNA is responsible for bringing amino acid at this site of protein formation. You can see the growing peptide chain here. Okay, this is transfer RNA. Now you can see the structure of small subunit of ribosome and large subunit of ribosome here. This is written over here. You can see the structure also. It consists of rRNA and certain proteins, and it has a role in catalytic role in the formation of protein, as we have already discussed. Okay, now let us talk about transcription in case of prokaryotes. Okay, let us talk about transcription in case of prokaryotes. Transcription consists of three steps in prokaryotes. So this is a step number 1, initiation, step number 2, elongation, and step number 3, termination. तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में. देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटेगराइजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन अ बैक्टीरिया. इसका मतलब ये है कि जो आरएनए वेरियस टाइप्स का बनता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है, ये एक ही तरह का एंजाइम बनाता है. उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके, आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले क्या करता है? इट बाइंड्स टू प्रमोटर रीजन एंड इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. It uses nucleotide trifosfate
as a substrate and polymerizes in a template dependent manner. कहने का मतलब ये है, आप देखिए ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो रीजन है इधर वाला जो हम मार्क कर रहे हैं इसको प्रमोटर कहते हैं। आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया भी है। दिस रीजन इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल जीन, एस बनाया हमने यहाँ पे, और ये है टर्मिनेटर। ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। प्रमोटर रीजन, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चरल जीन, इट इज़ अनदर रीजन ऑफ डीएनए। टर्मिनेटर रीजन, इट इज़ अनदर रीजन ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चरल जीन ही वो पार्ट है, यानी कि ये बीच वाला हिस्सा प्रमोटर के और टर्मिनेटर के जो बीच में प्रेजेंट है, यही वो हिस्सा है जो कि एक्चुअली आरएनए में कन्वर्ट होता है। प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन सिर्फ हेल्प करते हैं आरएनए फॉर्म होने में। तो सबसे पहले प्रमोटर रीजन का हम लोग फंक्शन समझेंगे। प्रमोटर रीजन वो रीजन है जो कि अपस्ट्रीम पोर्शन में प्रेजेंट है। आप देख रहे होगे स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। और प्रमोटर रीजन वो रीजन है जिसको सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है और विद द हेल्प ऑफ एक सिग्मा फैक्टर उस पर बाउंड होता है। देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर दिया हुआ है सिग्मा फैक्टर, नीचे देखिए सिग्मा फैक्टर दिया हुआ है। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉग्नाइज कराने में आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन, ताकि ये जो इनिशिएशन है वो शुरू हो सके, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सके। ओके, तो सिग्मा फैक्टर जो है वो जुड़ा होता है आरएनए पॉलीमरेज से, प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कराता है। फिर जो इलॉन्गेशन का प्रोसेस है वो आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलॉन्गेशन। आप देख रहे होंगे ये इलॉन्गेशन स्टेप यहाँ दिया हुआ है। इनिशिएशन स्टेप के बाद आता है इलॉन्गेशन स्टेप जो यहाँ दिया हुआ है। ये इलॉन्गेशन स्टेप जो है वो आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है बिना किसी हेल्प के, यानी कि यहाँ पे इलॉन्गेट कराने में सिग्मा फैक्टर की हेल्प नहीं लगती, नहीं होती है। ओके, ये देख रहे हैं आप, मैं इसको डिनोट करता हूँ, ये वाला हिस्सा आरएनए बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए इस डायग्राम में जहाँ इलॉन्गेशन बना हुआ है, ये वाला हिस्सा आरएनए का है, आरएनए बन रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आरएनए इलॉन्गेशन स्टेप में है। ओके, तो इनिशिएशन प्रोसेस में तो सिग्मा फैक्टर की हेल्प लगती है, इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज खुद इलॉन्गेट करता है, यानी कि एक नया आरएनए बनाता है। और टर्मिनेशन प्रोसेस में जैसे ही टर्मिनेटर साइट्स आते हैं, जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पे पहुंचता है तो वहाँ एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रो फैक्टर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये फैक्टर है, रो फैक्टर लिखा हुआ है यहाँ डायग्राम में। तो रो फैक्टर जो है एसोसिएट कर जाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, और उसी समय आरएनए जो है वो वहाँ से अलग हो जाता है। और साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो भी डीएनए के उस पार्ट से अलग हो जाता है। अब ये आरएनए नया आरएनए बन गया, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यहाँ आप देखिए ये पूरा लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज हेल्प इन opening of DNA helix with other enzymes and start the process of elongation. Once the polymerase reaches the terminator region, nascent RNA falls off. Nascent RNA का मतलब होता है newly formed RNA. So also the RNA polymerase. RNA polymerase भी अलग हो जाता है. This result in termination. यहाँ दोनों फैक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। सिग्मा फैक्टर ज़रूरी है आरएनए पॉलीमरेज के साथ एसोसिएट होने में, क्योंकि उसी की वजह से प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। रो फैक्टर ज़रूरी है टर्मिनेशन के लिए, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बोथ सिग्मा फैक्टर एज वेल एज रो फैक्टर are required by RNA polymerase in the process of initiation and termination. The process of elongation
is done alone by the RNA polymerase without the aid of any factor as such. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक का, और ये है जो हमारा टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक, ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन और कपल्ड लिखा हुआ है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन बनना। ये दोनों यहाँ कपल्ड होते हैं, और इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है। अब ये कपल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। आमतौर पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ऐसा होता है यूकैरियोट्स में। लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन जब पूरा हुआ भी नहीं होता ख़त्म, तब पीछे से ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, क्योंकि पूरा अभी ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म भी नहीं होता और ट्रांसलेशन एक तरफ से शुरू हो जाता है। एंड यू कैन सी दिस इन दिस डायग्राम एज सच। ये जो डायग्राम है उसमें आप बहुत आसानी से इस बात को देख सकते हैं। ये देखिए, इस चीज़ को देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये एक नया, ये जो ब्लू रंग का दिख रहा है ना, ये एक नया आपका आरएनए बना है, और आप देख रहे हो इसी आरएनए पे ये राइबोसोम्स भी अटैच हो गए हैं, आप देख रहे हो। और ये रेड कलर का आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, रेड कलर का, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब देखिए अभी आरएनए पॉलीमरेज अटैच ही है, और ये पूरा का पूरा डीएनए अभी पूरी तरह से खुला भी नहीं है, पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं हुआ है, और पीछे से यहाँ ट्रांसलेशन शुरू हो गया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, और ये प्रोकैरियोट्स में होता है। ये देखिए यहाँ लिखा है, इन प्रोकैरियोट्स बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। दिस मीन्स दैट इवन बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीट फ्रॉम वन एंड, ट्रांसलेशन बिगिंस एट द अदर एंड। सो आई होप आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में, 3 तरह के होते हैं प्रोकैरियोट्स में, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इसके बाद जितने भी तरह के आरएनए हैं, दे ऑल हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। उसके बाद फंक्शंस ऑफ आरएनए के बारे में देखेंगे। 3 तरह के होते हैं आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इनके फंक्शंस हैं, एमआरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल है, ट्रांसफर आरएनए का इट ब्रिंग्स अबाउट अमाइनो एसिड एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द जेनेटिक कोड। जो एमआरएनए में लिखा हुआ है वो ट्रांसफर आरएनए पता लगाता है कि क्या लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से फिर वो अमाइनो एसिड लाता है और उनको जोड़ता है, और उसी से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, आज देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसमें इनिशिएशन होता है स्टेप, इलॉन्गेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन स्टेप में सिग्मा फैक्टर लगता है, और इलॉन्गेशन स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज खुद ही इलॉन्गेशन स्टेप करता है, खुद ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। टर्मिनेशन स्टेप में फिर से आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर लगता है जिसका नाम होता है रो फैक्टर। इसका मतलब सिर्फ इलॉन्गेशन स्टेप ऐसा स्टेप है जिसमें किसी भी तरह के फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज खुद उसको करता है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं, खासतौर से प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कैसा होता है। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी लेक्चर के बाद आपका जो है, इसी लेक्चर के साथ अटैच है एक असाइनमेंट, वो आपको पूरा करना है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।